गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ भैया, मैसेज डाल दिए, क्लास स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग स्विंग पढ़ रहे थे। तो अगर देखा जाए तो स्विंग जो है आपका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक्रोनिम्स नहीं है। ये इसका नाम रिप्रेजेंट करता है एक कोलैबोरेटिव चॉइस ऑफ इट्स डिजाइनर। जो डिजाइनर्स ने नाम चूज किया वो नाम अब इसको मिला। दूसरा, when the project was kicked off in late 1960, Swing is actually part of a larger family of Java product known as JFC, Java Foundation Classes, which incorporates many of the features of Netscape Internet Foundation classes, जिसको आप IFC कहते हैं, as well as design aspects from IBM Telligent Division and Lighthouse Division. Swing was active development since beta period of the Java development kit JDK 1.1. The Swing API entered beta in the later half of 1997 and the release was in March 1998. When the release of Swing 1.1 library contained nearly 250 classes and 80 interfaces. तो 225 क्लासेस, 50 क्लासेस और 80 इंटरफेसेस के बारे में था। ये हम लोगों ने बात कर लिया था पिछली बार भी। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए आप स्विंग का यूज करते थे। The JFC classes are suite of libraries designed to assist programmer in creating enterprise application with Java. अगर हम देखें तो जावा के कई फ्लेवर हैं। आपने J2 SDK पढ़ा है, जिसे J2DK कहते थे, जावा डेवलपमेंट किट। इसके अलावा J2EE था, जावा एंटरप्राइज एडिशन। उसका J2ME था, जावा माइक्रो एडिशन। ये जावा के कई फ्लेवर्स थे। The Swing API is only one of the 5 libraries that make up JFC. The JFC also consists of AWT, the Accessibility API, and the 2D API and enhanced support for drag and drop capabilities. तो टोटल 4 और मिला के आपकी JFC की कंप्लीट लाइब्रेरीज को क्रिएट करते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के बारे में बात करें, since Java was first released, its user interface facility have been significant weakness. The use of AWK was a part of JDK from the beginning, but it's really not sufficient to support a complex user interface. In JDK 1.1,
fixed number of problem, and most notably it introduced a new event model. It did not make any major addition to the basic component. अब अगर आप देखिए JFC के बारे में, JFC में ये 5 क्लासेस होते हैं. The 5 APIs of the Java Foundation classes. अगर आप देखिए तो AWT भी है, Swing भी है, Accessibility भी है, Java 2D है और Drag and Drop है. In April 1997, the Java Soft announces Java Foundation classes. The major part of the JFC is a new set of user interface component called Swing. अगर आप देखिए तो Swing और Accessibility ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि जो Swings का यूज करके हम Accessibilities को यूज कर सकते हैं. अब अगर देखा जाए डिफरेंस बिटवीन AW क्लासेस एंड JFC क्लासेस, तो JFC क्लासेस हैव द नेम बिगिनिंग विद लेटर J. जो भी JFC क्लास का स्विंग का होगा उसका लेटर J होगा. जैसे लेबल को आप J लेबल कहेंगे, टेक्स्ट को J टेक्स्ट कहेंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? बेटा ऐसा तो नहीं हम हवा में कथा वाच रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? कि संस्कृत में सत्यनारायण की कथा चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा सर, आ रहा. मतलब स्विंग का जो भी आपका कंपोनेंट होगा, that will contain J in front of that name. क्लियर है? यस सर. J मतलब ये किस चीज को बिलोंग करता है? स्विंग को बिलोंग करता है. The JFC classes reside in the java.awt.swing package or javax.swing.package. The JFC classes typically provide more functionality than the corresponding AWT classes. The JFC classes bypass the AWT peer mechanism. अब कुछ एडिशनल फीचर्स थी जो AWT में नहीं थी. Several other features distinguish Swing from the older AWT component. पहला है a wide variety of new components such as table, trees, sliders, progress bar, internal frames. And text component. इसके अलावा स्विंग कंपोनेंट्स कंटेन सपोर्ट फॉर रिप्लेसिंग देयर इनसेट्स विद एन आर्बिट्ररी नंबर ऑफ कॉन्क्रीट बॉर्डर्स. Swing component can have tooltip placed over them. A tooltip is a textual pop-up that momentarily appears when the mouse pointer rests inside the component painting region. Tooltip can be used to give more information about the component in questions. भाई आपको tooltip का यूज मालूम होगा, आप ऐसे कभी कभी tooltip ले जाते होंगे माउस पॉइंटर को, तो उसके आगे एक इंफॉर्मेशन आती है. उस इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़कर समझ लेते हैं यहाँ पर हमको क्या इंफॉर्मेशन देनी है या ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा. क्लियर है?
We can arbitrarily bind keyboard events to component defining how they will react to various keystroke under the given condition. हम कीबोर्ड की भी वैल्यूज को बाइंड कर सकते हैं अगर हम चाहें, जिससे कि हमको पता लग जाए कि जो कीबोर्ड है वो बिहेव किस तरीके से करेगा। क्लियर है बेटा? सुमित है कि नहीं है अभी? तो ये लो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। कह रहे सुमित आए? सुमित? जी सर। हाँ, आप कई बार ट्राई किए थे, चलो आ गया। सर वो फोन से भी किया था, फिर कह रहे हो लैपटॉप ना, है क्या हुआ? पहले सर फोन से किया था तो वॉइस नहीं आ रही थी, फिर मैंने लैपटॉप से किया सर। बेटा देख लो, क्योंकि जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे हो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। जी अब आप इस पॉइंट को फिर से समझना चाहते हैं। ये पॉइंट ये है कि आपका जो कीबोर्ड है, जैसे कीबोर्ड में हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को करने के लिए पहले से कुछ की स्ट्रोक डिफाइन है। डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है? भाई जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कीबोर्ड के इवेंट्स को बाइंड करते हैं विद द कंपोनेंट। कि हमने फलाना कीबोर्ड अगर एंटर किया इवेंट को तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो इसके थ्रू आप वेरियस की स्ट्रोक्स की को चेंज कर सकते थे। सर शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट आप मैनेज कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। यस सर। जैसे आप मैक्रो का एडिशन, मैक्रो जब रिकॉर्ड करते हैं एमएस वर्ड में तो कंट्रोल ए जैसे आपने असाइन किया तो बताता है इट इज प्रीवियसली असाइन टू सेलेक्ट ऑल। बताता है कि नहीं बताता है? यस सर, ये बताता है। लेकिन हम उसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कंट्रोल ए सबको सेलेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। तो एक बार देख लीजिए, ऊपर से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए मुझे। मतलब ठीक है ना भैया, समझ में आ रही है बात? यस सर। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। स्विंग आपका एक लाइट वेट कंपोनेंट है। क्यों बताइए? अब मैं अपने को म्यूट कर रहा हूं, आप बताइए। सर स्विंग लाइटवेट इसलिए है क्योंकि ये जो है सारे के सारे जैसे एक लाइब्रेरी को हम लोग कॉल करें तो सारे के सारे लाइब्रेरी के फंक्शंस को एक साथ नहीं कॉल कर रहा है। वो जितने जरूरी होते हैं वो खाली कॉल करता है, और अगर कंपोनेंट का यूज नहीं होता है तो उसको वो स्लीप कर ले। मतलब उसमें ऐसा कमांड होता है कि अगर यूज नहीं हो रहा है तो वो प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा, वो पीछे के बैकग्राउंड में ही टर्मिनेट हो जाएगा या स्लीप पे चला जाता है। वो तो हम ये, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज होती है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, जावा में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक लाइट वेट कंपोनेंट होता है, एक हैवी वेट कंपोनेंट होता है। जो हैवी वेट होता है दैट विल यूटिलाइज द सेटिंग्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको क्या करना पड़ता है? बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित रखना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन जो लाइट वेट कंपोनेंट होते हैं वो सेल्फ केपेबल होते हैं, इसलिए उनको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती।
तो जो आपके पहले लेबल बनते थे, टेक्स्ट बॉक्स होता था, इसको विंडोज एनवायरनमेंट की या जिस एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट हो रहा है उस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट रहती थी। क्लियर है मेरी बात? इसको नहीं रिक्वायरमेंट रहती थी। जब से जे लगा, जे का मतलब, जे का मतलब क्या होता है? जे का मतलब वो कंपोनेंट AWT कंपोनेंट को बिलोंग नहीं करता, वो किसको बिलोंग करता है? स्विंग को। स्विंग को करता है। जब से स्विंग की बात शुरू हुई तो ये सब चीजें आपकी प्रीडोमिनेंटली इंटरनल हो गई, एक्सटर्नल रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं थी। बात समझ में आई? यस सर। तब भी सर जो है ये स्विंग भी तो बाकी विंडोज की कंपोनेंट को एक्सेस करेगा, तो ये भी तो उस सारे के सारे विंडोज के लाइब्रेरी को यूज करेगा, तो ये भी तो हैवी वेटिंग होगा। देखो, एक होती है डिपेंडेबिलिटी, एक होती है एक्सेसिंग। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, हमको किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए भाई। हमारे लिए फेवरेबल प्लेटफॉर्म तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देगा ही, बट अब हम चाहें कि हम टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं तो जो विंडोज की कलर स्कीम है, विंडोज के सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम फॉलो करें, तो इसका मतलब हम डिपेंडेबिलिटी हमारी कहाँ है? तो डिपेंडेबिलिटी हम लोग की विंडोज पे। तुम बेटा तरुण, बहुत तुम्हारी आवाज हल्की सी आ रही है। सो हम कह रहे हैं डिपेंडेबिलिटी जो है वो विंडोज के एप्लीकेशंस पे जो हम यूज कर रहे तो जितनी कम डिपेंडेबिलिटी आप करेंगे उतना आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? लाइटर वेट हो जाएगा। हैं। यस सर। भाई आप जावा क्यों ज्यादा यूज करते हैं? क्योंकि वो सारा चीजें मशीन डिपेंडेंसी को यूज नहीं करती, वो आपकी अपनी अपना एक उसके पास जो है JVM होता है, उसमें चलती है। लेकिन यस सर। इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है बताओ? तो इसकी limitations ये होगी कि सिस्टम की जो ज्यादा ऑपरेशन है या ओएस की जो ज्यादा फंक्शनैलिटी है वो यूज नहीं कर पाता होगा। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जो जावा है, जिस ओएस का JVM उसके पास अवेलेबल नहीं होगा उस पे कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। आप यही तो कहते हो कि मैक का, डॉस का, विंडोज का, सबका JVM उसका अवेलेबल है ना? यही तो कहते हो बेटा। यस सर। तो JVM जो है वो किस चीज का, जिस जिस ओएस का अवेलेबल नहीं होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को? यस सर। Yes, sir. ठीक है भैया, बात समझ में आई? ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। कितनी है? ठीक है। यस सर। समझ में आया बेटा? ये सवाल पूछा जाता है।
क्योंकि आप ये कहिए कि जावा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। वैसे अगर आप पाइथन के बारे में जानते होंगे तो पीवाईसी होता है। पीवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? पाइथन कंपाइल्ड फाइल। क्योंकि आप लोगों ने ये माना जानते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो कंपाइलेशन कहां से आ गया? वो बता सकता है? सर पाइथन दोनों है, इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलेशन को भी फॉलो करता है। जब आप पैकेजेस का यूज करते हो, मॉड्यूल्स का यूज करते हो, तो आपका जो मॉड्यूल्स होता है वो पीवाईसी से कंपाइल्ड होता है। उसकी जो फाइल बनती है उसका नाम होता है .pyc। गलत कह रहा हूं? यस सर। है बेटा? यस सर। हाँ, तो गलत कह रहा हूं तो सही बताओ क्या कह रहा हूं। सही बता है। तुमने यस सर कहा ना, मैंने कहा मैं गलत बता रहा हूं, तुमने कहा यस सर, तो बताओ सही। अरे सर दूसरा, आज आपको जो है एक सरप्राइज मिलेगा, ठीक है? दैट विल आफ्टर द लैब, ठीक है? आज लैब का प्री एंड भी है ना। लैब किसकी है? आप ही की तो है लैब। टू यस सर। टू की। यस सर। टू का आज प्री एंड है, ठीक है भैया? ओके सर। आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। तो आगे बढ़े भैया, क्योंकि अगर यस आप सर। देख रहे होगे, कोर्स सिलेबस देखा है अपना? यस सर देखा है। स्विंग कहाँ है? और सर स्विंग हम लोग की 5th। जैसे रतन सर कह रहे हैं स्विंग तो भुवनेश्वर कुमार कराता है। स्विंग भुवनेश्वर कुमार के पास है, भूमरा के पास भी नहीं है, शमी के पास भी नहीं है, ईशांत कपूर है, कौन है? ईशांत शर्मा के साथ है ना। समझ में आई मेरी बात? कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। बस उसमें बीच में थोड़ी चीजें छूटी हुई हैं, वो मैं कवर करा दूंगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं सिलेबस के बाद भी कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, जैसे आपको प्रोजेक्ट में दिक्कतें ना आए, ठीक है? पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं? यस सर। यस सर। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरे लिए आसान है। नहीं सर पढ़ना चाहते। पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये है कि मैंने सोच लिया है, ये करा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब एडिशनल फीचर हैं। द स्विंग क्लासेस आर यूज्ड टू बिल्ड GUI। अभी तक जितना काम आपने किया था वो सब किस पे किया था? CUI पे किया था। अब GUI आपका शुरू हो रहा है, ठीक है? और इसके बाद जो शुरू होगा GUI के बाद, वो आपका वेब और जो दूसरी चीजें शुरू होंगी। समझ में आई मेरी बात? यस सर। स्विंग डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग, ये मैं बता चुका हूं। कोई स्विंग का फुल फॉर्म बता दे तो भाई महान आत्मा है, अपने आप उसने कर दिया है। स्विंग जो है वो 1.1 और 1.2 AWT लाइब्रेरीज के ऊपर बिल्डअप हुआ है। स्विंग के अंदर 3 मेजर इंप्रूवमेंट हुए थे इररिस्पेक्टिव ऑफ AWT। पहला क्या था? इट डज नॉट रिलाई ऑन द प्लेटफॉर्म नेटिव कंपोनेंट। यही मैं आपको चीज बता रहा था, जो लाइट वेट और हार्डवेयर
वो हैवी वेट बता रहा था, तो अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म के नेटिव कंपोनेंट पे डिपेंडेंसी ज्यादा दिखाएंगे, तो नेटिव कंपोनेंट अगर हैवी होंगे तो वो हैवी चीज होगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? नेटिव कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? सर जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं या इनबिल्ट वो कंपोनेंट्स है उसको यूज करना। हाँ, जो आपके प्लेटफॉर्म के इनबिल्ट कंपोनेंट है उसको यूज नहीं करता है। इट सपोर्ट प्लग, लुक एंड फील। ये बड़े ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फिर है इट इज बेस्ड ऑन एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्लियर है? सर एमवीसी का नहीं समझा। मतलब क्या होता है? यस सर। देखिए, किसी काम को करने का एक पर्टिकुलर तरीका हमने पहले से डिफाइन कर दिया, डेट इज मॉडल। ठीक है, अब हमने एक यूजर को शो करने के लिए व्यू बनाया। व्यू तो आपने डीबीएमएस में पढ़ा ही होगा। व्यू क्या होता है? सर जिससे हम लोग जो भी जो कहते भी हैं आप टेबल्स या। देखते हो, जो भी चीजें आप देखते हो, वो व्यू के अंदर ही आती हैं। यस सर। आती है कि नहीं आती है? हम गलत कह रहे हैं? यस सर आती हैं। और अगली चीज होती है, मॉडल और व्यू को कोरिलेट करने के लिए हमको कंट्रोलर की जरूरत होती है, जिसको लिसनर कहते हो। सर तो फिर AWT में भी तो लिसनर था हम लोग के पास पहले से। नहीं, एडब्ल्यूटी में तो लिसनर था, पर उसमें आप मॉडल नहीं क्रिएट करते थे। उसमें आपके पास व्यूज नहीं थे, केवल कंट्रोलर ही कंट्रोलर था। भाई, कंट्रोलर तो हर चीज का इंटीग्रल पार्ट हुआ, नहीं तो वो कंपोनेंट को कंट्रोल कैसे करेगा? बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे डॉट नेट था, वो एमवीसी पे था, लेकिन जो डॉट नेट कोर है वो एमवीसी से हटा दिया गया है, कि एमवीसी इज नाउ ऑब्सोलीट। तो अगर आप डॉट नेट पढ़ रहे हैं और डॉट नेट कोर पढ़ रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। इसीलिए मैक्सिमम कंपनी, अगर आप डॉट नेट डेवलपर होना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कंपनीज आर कन्वर्टिंग देयर ओल्ड डॉट नेट प्रोजेक्ट्स इनटू डॉट नेट कोर। तो अगर फ्यूचर स्कोप आप देखिए, तो क्या आपको डॉट नेट कोर आती है? मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर छुट्टियों में आपको डॉट नेट कोर पढ़ना पड़े तो पढ़ लीजिएगा, और अच्छी पढ़ाई बगैर गुरु के नहीं होती। ये फैक्ट है कि हम झूठ बोल रहे हैं? है भाई तरुण? सर फैक्ट है। फैक्ट है। कि लोग कहते क्या हैं कि भाई आप यूडीमी से पढ़ लो। यूडीमी में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि यूडीमी जो रिकॉर्डेड है नोट्स, उन्हीं को आपको पढ़ना है। गलत कह रहा हूँ? लेकिन जब टीचर होता है तो आपके डिमांड में अगर कोई चीज आ रही है, और डॉट नेट कोर ऐरी गहरी जगहों से मत करिएगा, नहीं तो आप डॉट नेट में ही फंसे रहेंगे, कोर तो पढ़ेंगे ही नहीं। मेरे पास कई फीडबैक आपके सीनियर्स के हैं जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की और उनको यही दिक्कत का सामना करना पड़ा, कईयों ने बीच में छोड़ दिया। एग्जाम्पल अगर बताऊं तो एक बच्चा है आपका सीनियर है, उसने ही छोड़ दिया बीच से। ठीक है, चलो फिलहाल वो तो बाद में जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे।
अब अंतर समझ लीजिए, AWT में java.awt यूज करते हैं, स्विंग में आप java.accessibility यूज करते हैं। जावा, ये आप जावा x.swing होता है या java.awt.color होता है। java.awt डेटा ट्रांसफर होता है, java.swing.color चूजर होता है। java.awt इवेंट होता है, वहां java swing.event होता है। यहाँ पे जावा स्विंग डॉट फाइल चूजर होता है, PLF होता है, टेबल होती है, txt.html होती है और जावा स्विंग ट्री होती है। अगर आप देखिए कंपैरेटिवली जो फीचर्स हैं जावा AWT में कम हैं जो GUI पैकेज में हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। अब अगर मुझसे कोई कहे कि आप जावा पढ़ लीजिए तो मैं जावा नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा बताओ? बताओ भाई, मैं जावा क्यों नहीं पढ़ूंगा? अब कोई बोल ही नहीं रहा है, सब शांत। सर आपको आती है ना? अरे भाई नहीं भी आती हो तो भी नहीं पढ़ूंगा, बताओ। सर अगर कॉन्सेप्ट समझने के लिए है तो तब देख लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे अब जावा जो है उसकी जगह अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं, मतलब अलग अलग एडवांस लैंग्वेजेस आ गई हैं जो इससे सही परफॉर्मेंस कर लेती हैं और नेट से उनका कनेक्शन और सिक्योरिटी और अच्छी है जावा से ज़्यादा। तरुण एक बात सही कह रहे हैं कि जावा से बेटर लैंग्वेजेस आ चुकी हैं आजकल। और अगर आपको बेसिक सीखनी है, क्या कहते हैं, अबाउट ऊप्स और ये सब चीजें, तो आप जावा C++ सीख सकते हैं। जावा का उतना कोई यूज ही नहीं है भाई। जावा पहले एंड्रॉयड में यूज होती थी, अब क्या हो गया? जब से कॉटलिन आई, फिर फ्लैटर आई, जावा फ्लैट हो गई कि नहीं हो गई बताइए? यस सर। यस सर। क्योंकि जावा के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो वैसे भी हैवी वेट होते हैं, चाहे जितना आप लाइट वेट की कंपोनेंट के बारे में बात कर लीजिए। अब हमको और अजीत को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हम चाहे जितने जो हैं VLC के पैकेज ज्वाइन कर लें, VLCC के, हम अजीत नहीं बन सकते। और अजीत चाहे जितना वो पैकेट खा लें, जो उसमें वो होता था कि पहले मैं दुबला था, आर्मी में नहीं जा पाता था, फिर मैंने ये पिया तो मैं आर्मी में चला जाने लगा, एक ऐड नहीं आता था पहले। चाहे जितने पैकेट पी लें वो हमारे बराबर ना हो पाएंगे। समझ में बात आ रही है भैया? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहे जितना लो वेट हो जाए, पहले क्या था आपके पास मार्केट में ऑप्शंस नहीं थे, तो अनफॉर्चुनेटली आपको जावा पे जाना ही पड़ता था। जैसे पहले एक लैंग्वेज आती थी क्लिपर, क्लिपर के प्रोग्राम्स जावा में कन्वर्ट किए गए। आप एक अपना लोकल MNC जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जानते हैं, उसका नाम है सहारा। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं? सर जानते हैं? जानता है सहारा के बारे में? यस सर आप नहीं जानते हैं? जानता हूँ। सहारा में पहले पैकेज जो यूज होता था VB यूज होता था, विजुअल बेसिक उनका जो सॉफ्टवेयर था। विजुअल बेसिक से उन्होंने .NET विजुअल बेसिक पे आए, फिर वो .NET C# पे आ गए, बट वो कभी भी जावा पे नहीं आए। जावा के पास जो एडवांस कह सकते हो प्रिविलेज थी, वो थी कि मोबाइल एप्लीकेशंस बड़े आसानी से बना सकते हो। वो भी आजकल जो है लोगों ने छीन ली।
तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक्चुअल फैक्ट है कि जावा डेवलपर्स उतने रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको वेब रिक्वायरमेंट की जरूरत है, आपको जो है PHP आनी चाहिए। PHP अगर आती है तो आप जो है वर्डप्रेस, मोजो, शॉफी, ओपन कार्ड, ये सारे जो है वर्डप्रेस सॉरी PHP पे ही बिल्डअप है। समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। अब स्विंग कंपोनेंट के कुछ स्विंग कंपोनेंट है, उनके जो है डिस्क्रिप्शन है। जावा एप्लेट क्या करता है? इट्स अ स्विंग वर्जन ऑफ एन एप्लेट। क्लियर है? जे बटन क्या करता है? स्विंग कमांड बटन क्लास है। जे चेकबॉक्स चेकबॉक्स का काम करता है। जे कॉम्बो कॉम्बो बॉक्स का काम करता है। जे लेबल लेबल का काम करता है। तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा भैया, ये समझ में आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. नो सर? कौन बोला नो सर? जो आप जे हटा दीजिए, वो कंपोनेंट आपका बन जाएगा AWT का कंपोनेंट। जब जे लगा देंगे तो वो कंपोनेंट कन्वर्ट किस में हो जाता है? स्विंग में। स्विंग में हो जाता है। तो समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। Yes, sir. आ रही है? Yes, sir. अगर आप यहाँ देखिए तो java.lang.object है, java.awt कंपोनेंट है, java.awt कंटेनर है। अब इसका एब्स्ट्रैक्ट बटन देख लीजिए, जे बटन है, जे मेनू आइटम है, जे टॉगल बटन है। टॉगल का मतलब क्या होता है? ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अगर जे मेनू आइटम में देखिए तो जे रेडियो बटन है, जे चेकबॉक्स मेनू आइटम है, जे मेनू है, जे रेडियो है, जे चेकबॉक्स है। ये सारी चीजें आपकी जावा स्विंग की कंपोनेंट हैं। क्लियर है बेटा? Sir. अब रिलेशनशिप बिटवीन AWT एंड JDK इन 1.1 एंड 1.2 JDK। AWT क्लासेस और इनको कहा जाता है जावा डेवलपमेंट किट। इसमें क्लास फाइट करके क्लास पाथ में आपको स्विंग gall.jar नाम की फाइल को यूज करना पड़ता था, जो स्विंग क्लासेस ऐड होते थे। ये JDK 1.1 का केस था। AWT क्लासेस और जावा स्विंग क्लासेस JFC के अंदर आए एंड इट इज ओनली इन JDK 1.2। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, इन विच JDK वर्जन द स्विंग हैज बीन एडेड? 1.1.1, 1.1.2,